Hello everyone, hope you all are well. Welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Today's my topic is events in a sexual reproduction. Okay, so in this video, what I will discuss first three events related to the sexual reproduction. In second slide, we will study about the gametogenesis and the types of gametes. In third slide, we will study about the sexuality in the organisms, whether they are bisexual or the unisexual. In next slide, we will study about the different organisms which has been given in your NCERT book related to their sexuality, whether they are unisexual or the bisexual. In next slide, we will study about the cell division type in the organisms, whether that is meiosis or mitosis. And in my last slide, I will discuss this table which has been given in your NCERT based on the chromosomes number in the myocytes and the gametes. So let's start from the first slide. So now, there are three events basically in a sexual reproduction. One is a pre-fertilization event, second is a fertilization event, and the third one is a post-fertilization event. प्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहले, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन से पहले होगा गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस में और गैमेट्स का ट्रांसफर. नेक्स्ट होती है फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें इन दोनों गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, which we will study in syngamy. Also we will study parthenogenesis and the types of fertilization, whether it is external fertilization or internal fertilization. Now in next post fertilization event we will study कि after the fusion of gametes जो first cell हमारे पास में बनती है zygote, उसका क्या होगा, उसमें किस टाइप का डिवीजन होगा और उससे फर्दर जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें किस तरह का डेवलपमेंट होगा. Okay, so first I am taking here pre-fertilization event in which I am starting this gametogenesis. Gametogenesis, genesis स्टूडेंट होता है फॉर्मेशन, ठीक है, और गैमेटो मतलब हो गया गैमेट्स. तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. So formation of gamete is gametogenesis. Now what are gametes? Gametes are basically sex cells which have haploid number of chromosomes. तो जिनमें haploid number यानी half number of chromosomes होते हैं from the parent body, they are known as a gametes. Now based on the morphology, they are of two types, whether they are of same size and shape or they are of the different size and shape. अगर सेम साइज एंड शेप के होंगे कि तो होमो हम लोग वर्ड यूज करते हैं. होमो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम, उसको हम लोग कहेंगे होमोगैमेट्स, और जहां पे वो डिसिमिलर होंगे उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोगैमेट. Dissimilar in a size and shape. Okay, they are also known as anisogametes and homogametes are also known as isogametes. Now we come to the examples. तो होमोगैमेट्स में स्टूडेंट्स आपके एग्जांपल्स है लाइक क्लैडोफोरा जो कि एक एल्गी होती है, और हेटेरोगैमेट्स में आपके एग्जांपल्स हैं जैसे अगर हम लोग प्लांट के केस की बात करें तो प्लांट में हमारे पास में एल्गा एक दी हुई है फ्यूकस जो हेटेरोगैमेट्स का एग्जांपल है, और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स का, वो भी हेटेरोगैमेट्स का एग्जांपल है. ठीक है, दिस पिक्चर हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी in which this A diagram is related to the cladophora which have same size and shape gametes, that's why it is isogametes condition. दूसरा भी एग्जांपल है एल्गा का ही, बट ये फ्यूकस का एग्जांपल है जिसमें गैमेट जो है वो डिसिमिलर साइज एंड शेप है. यहाँ एक और चीज में यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ये जो गैमेट्स है बिकॉज दे हैव दिस स्पेशल स्ट्रक्चर, दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फ्लैजिला. तो इन फ्लैजिला की हेल्प से ये मोटाइल है, ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं. जबकि अगर हम लोग फ्यूकस में देखें तो फ्यूकस में हमारे पास में दो गैमेट्स हैं, एक ये बहुत छोटा है और एक ये बहुत बड़ा है. तो ये जो बड़ा है ये फीमेल गैमेट है और ये जो छोटा सा है ये मेल गैमेट है. तो मेल गैमेट मोटाइल है और फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल है. तो दिस इज एन आइसोगैमेट कंडीशन एंड दिस इज ऑल्सो एन आइसोगैमेट जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है. ये स्पर्म है और ये क्या है, ओवा. So they both are different in their morphology and also one is motile जो sperm motile है and ovum is non-motile. Next my slide related to the sexuality in organisms. So sexuality की जब हम लोग बात करते हैं तो whether they are unisexual or the
बाइसेक्सुअल, वी विल टॉक इन प्लांट केस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है तो उनको हम लोग होमोथैलिक या फिर मोनोशियस भी कहते हैं। होमोथैलिक का मतलब हो गया स्टूडेंट सिमिलर थैलस, जैसे कि सेवरल फंजाई और कुछ सिंपल प्लांट्स हो गए, उनमें थैलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनमें प्लांट बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। तो एक ही थैलस यानी सेम थैलस में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द बाइसेक्सुअल प्लांट्स लाइक कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। Cucurbit, coconut, monoecious, bisexual, these word you can learn by a simple trick which I will give to you. जैसे monoecious के लिए मैं एक वर्ड ले रही हूँ यहाँ से मोना, और bisexual के लिए मैं यहाँ पे वर्ड ले रही हूँ बाय, और cucurbit के लिए लर्न करने के लिए मैं एक वर्ड ले रही हूँ cu, that is related to cucumber, और कोकोनट के लिए सिंपल मैं ले रही हूँ co, that is also related to the कोकोनट। तो मोना जो है, क्योंकि अधिकतर जो गर्ल्स होती हैं वो अपने वेट को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होती है, तो मोना जो है वो वेट रिड्यूसिंग प्लान फॉलो कर रही है, अपनी बाइसेप्स को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है, जिसके लिए सिर्फ वो कुकुम्बर यानी खीरा खा रही है और पानी में भी सिर्फ कोकोनट वाटर जो है वो ले रही है। ठीक है, तो मोना अपनी बाइसेप्स को कम करने के लिए, अपना वेट रिड्यूस करने के लिए कुकुम्बर खा रही है और कोकोनट वाटर पी रही है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल जो होंगे उनका जो थैलस होगा, मेल थैलस अलग होगा और फीमेल थैलस अलग अलग होगा, तो दैट कंडीशन इज नोन एज अ हेटेरोथैलिक। दे आर ऑल्सो नोन एज अ डायोशियस। डायोशियस हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, दो अलग अलग घर में, तो जब दो अलग अलग घर में हो गए तो इस कंडीशन को हम लोगों ने कह दिया डायोशियस। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जो कि आपको एनसीईआरटी में गिवन है और मेनली क्वेश्चन भी बनाते हैं कई बार, सो दे आर पपाया एंड दी डेट पाम। इसको भी हम लोग एक सिंपल ट्रिक से लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यूनी से मैं वर्ड ले रही हूँ हमारे पास में UN, ठीक है, फिर मैं ले रही हूँ वर्ड पपाया से पापा, फिर मैं ले रही हूँ डेट पाम से वर्ड डेट, और लास्ट में वर्ड ले रही हूँ आपके डायोशियस से डे। तो किसी भी पर्सन की उन्नति के लिए जरूरी है पापा की डांट और पापा का दुलार। तो UN हो गया आपका यूनिसेक्सुअल, PA हो गया आपका पपाया, DAT हो गया आपका डेट पाम, और D हो गया आपका डायोशियस। तो ये सिंपल ट्रिक्स है जिससे कि आप लोग इसके एग्जांपल्स और ये वर्ड्स जो है वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स अगर बाइसेक्सुअल होते हैं तो दे आर ऑल्सो नोन एज अ हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल्स हैं इनके जैसे लीच, अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, स्टेफर्म, जो कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं वो जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, एस्कैरिस। एस्कैरिस अगर आपको याद हो तो एस्के हेलिमंथीज ग्रुप होता है नॉन कॉर्डेट्स में, वहीं से ही ये जो सेक्सुअल मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होना स्टार्ट हुआ था एस्के हेलिमंथीज से। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड मैंने यहाँ से पिक्चर्स की ली है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। बेसिकली द फर्स्ट पिक्चर विच इज रिलेटेड टू द अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, टेस्टिस भी प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया बाइसेक्सुअल। अगर हम लोग बी पिक्चर की बात करें तो बी पिक्चर में आपके पास में है कॉकरोच का पिक्चर। तो ये कॉकरोच में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, उसमें कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल फॉर द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग सी पिक्चर की बात करें तो सी आपको एक एल्गी का पिक्चर दिया हुआ है। ये एल्गी है आपके पास में कारा, जो कि मोनोशियस होती है। मोनोशियस से आप याद कर लो, मोना अपनी बाइसेप्स को कम करना चाह रही है, इसका मतलब बाइसेक्सुअल हो गई, यानी दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो गए। नाउ हम लोग बात करते हैं डी की, जो कि है थैलस का डायग्राम। एक फीमेल थैलस है और एक मेल थैलस है, यानी दोनों अलग अलग थैलस हो गए, तो यानी हेटेरोथैलिक कंडीशन हो गई। फीमेल थैलस हो गया जिसको आर्चियोगोनियो 4 इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मेल थैलस है जिसमें N3DO4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि एंथीरोइड्स बनाएगी जो कि मेल गैमीट होते हैं, और आर्चिगोनियो 4 जो बनाएगी वो बनाएगी आर्चिगोनियम बनाएगी जो कि एक
फीमेल गैमेट है, तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग थैलेस पे डेवलप होगी, तो इसको हम लोगों ने हेटेरोथैलिक कंडीशंस कह दिया। और इसका एग्जांपल है मर्केंशिया विच इज अ डायोसियस प्लांट। नेक्स्ट आपको पिक्चर दे रखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, जिसमें कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम हो गया स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम हो गया कार्पल या फिर पिस्टल, और एग्जांपल है इसका स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट स्लाइड जो मेरी रिलेटेड है वो रिलेटेड है सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि गैमेट जो होते हैं वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं इन नेचर, इसका मतलब उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो अगर चाहे बॉडी हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, पर बनेंगे उससे n नंबर क्रोमोसोम वाले गैमेट्स ही। तो हैप्लॉइड बॉडी में जो डिवीजन टाइप होगा वो माइटोसिस होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस के थ्रू सेम रहते हैं। जबकि डिप्लॉइड अगर बॉडी होगी तो उसमें जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा, क्योंकि डिप्लॉइड बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 2n होते हैं, जिससे हैप्लॉइड गैमेट बनेगा जिसमें कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। नाउ डिप्लॉइड बॉडी जो होती है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं मियोसाइट्स। स्टूडेंट्स, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अगर मैं नाम बताऊं आपको तो इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है मियो। सो मियो वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? मियोसिस। साइट्स का मतलब हो गया सेल, यानी ऐसी सेल जिनमें की मियोटिक डिवीजन हो। दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे रिलेटेड है वो है गैमीट मदर सेल, यानी गैमीट की माँ, गैमीट की मदर, ऐसी सेल्स जो कि गैमीट्स बनाएंगी। तो बेसिकली दीज आर गैमीट फॉर्मिंग सेल्स विच विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स हैप्लॉइड के एग्जांपल्स हो गए जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। अब हम बात करते हैं डिप्लॉइड की। तो जो हाईली डेवलप्ड प्लांट्स हो गए या डेवलप्ड एनिमल्स हो गए, जिनमें हम लोग ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड करते हैं, दे ऑल विल कम इनटू द डिप्लॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन like pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, most of the animals including the human being. नेक्स्ट स्लाइड जो रिलेटेड है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन एक टेबल से रिलेटेड है, जिसमें स्टूडेंट आपको एक साइड में मियोसाइट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे आपको गैमेट्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गिवन है। ठीक है, तो अब अगर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मियोसाइट में क्योंकि 2n क्रोमोसोम नंबर होते हैं, तो अगर उसमें 46 क्रोमोसोम है तो गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जस्ट उसके हाफ होंगे, दैट वुड बी 23। तो जो ब्लैक से लिखे हुए हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हुए हैं बुक में, एनसीईआरटी बुक में। बाकी जो व्हाइट से मैंने लिखे हैं वो सब आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। जैसे हाउस फ्लाई में आपको गिवन है 12, तो गैमेट्स में जाहिर सी बात है हाफ हो जाएंगे 6। रेड में आपको गैमेट्स में दिए हुए 21, तो मियोसाइट्स में जस्ट डबल हो जाएंगे 42। डॉग में आपको मियोसाइट्स में गिवन है 78, तो गैमेट्स में आधे हो जाएंगे यानी 39। कैट में आपको गैमेट्स में दिए हुए हैं 19, तो मियोसाइट्स में हो जाएंगे जस्ट डबल 38। फ्रूट फ्लाई में आपको मियोसाइट्स में दिए हुए हैं 8, तो गैमेट्स में आपके हाफ हो जाएंगे 4। ऑफ्यूग्लॉसम में आपको दिए हुए हैं 630, जो कि गैमेट्स में दिए हुए हैं, तो मियोसाइट में जस्ट डबल 1260 हो जाएंगे। एप्पल में आपको मियोसाइट्स में दिए हुए हैं 34, तो गैमेट में जस्ट हाफ हो गए आपके 17। राइस में आपको गिवन है 3, तो मियोसाइट में आपके जस्ट डबल हो जाएंगे 6। मेज में आपको गिवन है 20, तो गैमेट्स में आपके हाफ हो जाएंगे 10। पोटैटो में आपको गिवन है गैमेट्स में 24, तो मियोसाइट में जस्ट डबल हो जाएंगे 48। बटरफ्लाई में आपको गिवन है 380 इन मियोसाइट, तो गैमेट्स में जस्ट हाफ हो जाएंगे 190। और ऑनियन में आपको गिवन है गैमेट्स में 16, तो मियोसाइट में हो जाएंगे आपके 32। तो मियोसाइट में डिप्लॉइड हो गए और गैमेट में हो गए हैप्लॉइड। So hope you liked my video. If you liked my video, please hit the thumbs up because that is very important for my further upcoming videos. And if you have any doubt, query, question, then write down in a comment box. Share my video and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.